Welcome for our present discussion. Our subject accountancy. Myself, B. Mr. Sir of Hindi Balika Vidyapith Siliguri. Before you, like to discuss a very crucial chapter, the basic accounting terms, second chapter for the class 11. This is my episode number 2 for the chapter basic accounting terms. In the first episode, I have discussed the 5 terms, and in this episode, I will discuss the 6th number term and 7th. It will take some time. The 6th term is coming before us, liability. Whatever terms will be discussed in this chapter, and about whatever terms we are discussing, those terms are not for any person. Those terms are used for the preparation of accounting process of the organization, prepared by the accountant of the organization. That organization may be the business organization, may be non-business organization, such as the school, nursing home, colleges, universities, NGOs, like that also. Every organization needs asset, needs liabilities, needs expense, income, needs money to start the organization, to run the organization in future. So, these terms are used for the accounting process. Now, question is the liability. What is liability? Liability is the financial burden. लाइबिलिटी इज फिनेंशियल बर्डन. अगर हम हिंदी में बोले तो आर्थिक बोझ. मेरे सर पे कितना आर्थिक बोझ है वो लाइबिलिटी नहीं है बिजनेस का. बिजनेस के सर पे कितना आर्थिक बोझ है वो बिजनेस का लाइबिलिटी है. अकाउंट्स किसी ओनर का नहीं बनता है, मालिक का अकाउंट्स नहीं बनता है. अकाउंट्स बनता है ऑर्गेनाइजेशन का, और अकाउंट्स बनता है बिजनेस का. तो बिजनेस का जो लाइबिलिटी, बिजनेस का जो फिनेंशियल बर्डन, उसका बात किया जा रहा है. जस्ट एग्जांपल, आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस, आई एम द ओनर, बट आई डोंट हैव मच मनी. आई हैव टेकन द लोन फ्रॉम द बैंक टू स्टार्ट माय बिजनेस. 4 lakh rupees I have taken loan from the bank. So bank loan is the liability. Bank will catch me if I cannot redeem this loan to the bank. But in the process of accounting, this is the liability not of the owner, but this is the liability of the business, because accountant prepares the accounts of the business, of the organization, not of the owner. So bank loan is the financial burden of the business. That's why it is the liability. Suppose business has taken the goods from the supplier for rupees 2 lakhs. So on credit, the amount is not given by the owner. So business will give this money to the creditor. So this is also another term is coming, creditor. So creditor is also another liability, another kind of liability. So type of liabilities में वो आएगा. Now these are the liability, because this is the financial burden of the business to give this money to anybody. बिजनेस से किसी को मिलेगा, बिजनेस को उधार में सामान दिया गया था, इसलिए बिजनेस को देना है, इसलिए बिजनेस का ये लायबिलिटी है, आर्थिक बोझ है. लायबिलिटी को बेसिकली 2 भाग में भाग किया जा सकता है. नंबर 1 इंटरनल लायबिलिटी, नंबर 2 एक्सटर्नल लायबिलिटी. मालिक या ओनर सपोज अपने पॉकेट से 4 लाख रुपया देके बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, that is the capital. That capital is also the internal liability. हम ओनर है मेरे बिजनेस के, हमने 4 लाख रुपया देकर अपने बिजनेस को शुरू किए हैं, तो दिस 4 lakh rupees इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस. ये मत सोचिए कि ये बिजनेस में पैसा आया 4 लाख तो
क्योंकि बिजनेस के लिए एसेट हो गया, एसेट हुआ, कैश के रूप से आया तो ये एसेट है। लेकिन फिर ये बिजनेस का लायबिलिटी भी है, बिकॉज बिजनेस हैज टेकन दिस मनी फ्रॉम द ओनर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज हियर, एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर। भले वो बिजनेस ओनर से पैसा लिया है, ये 4 लाख रुपया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, अकाउंट्स बिजनेस का बन रहा है, ओनर का नहीं बन रहा है। सो ये बिजनेस का लायबिलिटी बन जाते हैं कि ये 4 लाख रुपया जो मालिक से लिए, ये पैसा मालिक को वापस करना है। तो ये इंटरनल लायबिलिटी है, बिकॉज ओनर इज द इंटरनल पर्सन ऑफ द बिजनेस। एक्सटर्नल लायबिलिटी, ओनर छोड़ के ट्रायंगुलर, एक बिजनेस, उसका ओनर और बिजनेस और ओनर छोड़ के जो है सब आउटसाइडर। आउटसाइडर से जो पैसे लिए हैं बिजनेस, लोन के रूप से बैंक लोन, या सामान लिया है बिजनेस, उधार में पैसा नहीं दिया, ऑन क्रेडिट पे परचेस किया, पैसा देना बाकी है, तो ऑल दीज आर द एक्सटर्नल लायबिलिटी। बट एक्सटर्नल लायबिलिटी में भी फिर 2 भाग हैं, एक है नॉन करेंट लायबिलिटी और एक करेंट लायबिलिटी। पहले करेंट लायबिलिटी डिस्कस करने से नॉन करेंट लायबिलिटी इजी हो जाते हैं समझने के लिए। करेंट मीन्स हियर ओनली फॉर द 1 ईयर। करेंट लायबिलिटी दैट इज बिजनेस, अगर कोई सामान खरीदे हैं on credit में, after 6 months, after 7 months, money will be redeemed. So this is current liability. That means the liability which is to be redeemed within 1 year maximum. That is called the current liabilities. उसका भी बहुत सारे नाम हैं, आप किताब में देखोगे उसमें नाम आएगा आपको current liabilities में। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में बिजनेस के नाम पे जितना पैसा है उससे ज़्यादा अगर उठा लिए बैंक से बिजनेस के काम के लिए, तो एक्सेस मनी जो उठाया जाता है दैट इज कॉल्ड द बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट का बात जब आता है तब फिर और एक डिस्कशन आ जाता है सामने। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज एनीबॉडी cannot get this facility of bank overdraft. Bank overdraft facilities are given to the person by the bank against the current account, not the savings account. And current account opening opportunity is given only to the businessman, not to the general people can open the current account in the bank. So for the business purpose, if more than the available amount in the current account of any bank the businessman needs and the bank can allow sometimes, then excess money is being treated as the bank overdraft. That is the current liability of the business. It is the target of the business to give back this bank overdraft money within 1 year. So bank overdraft is a term for the current liability. Outstanding expense, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं बिजनेस में, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसका 2 महीने का फीस, 2 महीने का सैलरी उसको वापस मैंने दिया नहीं किया, बाकी है, वो देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नाम है उसका आउटस्टैंडिंग सैलरी, टर्म इज यूज्ड इन द अकाउंटिंग प्रोसेस आउटस्टैंडिंग सैलरी, बट इट इज द करेंट लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। क्रेडिटर्स करेंट लायबिलिटीज का एक टर्म है। कब हम क्रेडिटर नाम को बुलाएंगे, कब हम बैंक ओवरड्राफ्ट टर्म को बुलाएंगे, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। ट्रांजैक्शन को पढ़ के हमको जानकारी होना चाहिए। इसमें क्रेडिटर्स नाम का करेंट लायबिलिटी आ रहे, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट नाम का करेंट लायबिलिटी आ रहे, इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का करेंट लायबिलिटी आ रहे। क्रेडिटर्स करेंट लायबिलिटी तब होता है जब कोई सामान खरीदा गया बिजनेस के लिए। हम अगर पर्सनल लाइफ के लिए, हमारा घर का ड्राइंग रूम के लिए हमने एक सोफा खरीदे हैं 1 लाख रुपये से और पैसे दिया नहीं, देना पड़ेगा, तो ये बिजनेस का क्रेडिटर्स नहीं होगा। हमने बिजनेस पर्पस के लिए नहीं खरीदा, हम पर्सनल यूज के लिए खरीदे। दैट इज डिफरेंट फैक्टर। बिजनेस एंड बिजनेसमैन इज अ सेपरेट, इट इज वन कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट।
In the third chapter, the concept will be discussed. So, there are so many current liabilities. Meaning of current liability is this: the liability which is to be given back, meet up within 1 year maximum. And after 1 year, for more than 1 year, if there is any liability or financial burden of the business towards anybody, outsider, not owner, is called the non-current liability. Example, बैंक लोन. अगर बिजनेस ने 4 साल के लिए लोन लिया बैंक से, तो वो बैंक लोन हो जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी. अगर कोई गिरवी रख के, कोई सामान को गिरवी रख के लोन लिया गया, मॉर्टगेज लोन, वो भी हो जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी. आफ्टर 1 year, after 3 years, after 4 years, after 5 years, it will be redeemed by the business to the bank. Now we are proceeding towards the assets. What is asset? एसेट मतलब हम लोग नॉर्मली जानते हैं संपत्ति है. एसेट किसका संपत्ति भाई? मेरा संपत्ति. नॉट दैट. मेरा बिजनेस के नाम पे क्या क्या प्रॉपर्टी है. ये एसेट का मतलब खाली ये नहीं है कि बिजनेस के नाम पे कितना लैंड एंड बिल्डिंग है, बिजनेस के नाम पे कितना मशीन है. सिर्फ उसी को एसेट नहीं कहते हैं. एसेट का बहुत वाइड मीनिंग आ रहे हैं आपके सामने अभी. एसेट्स आर डिवाइडेड बेसिकली इन 3 parts. One is non-current asset, another is the current asset, and third one is the fictitious asset. Non-current asset means for more than 1 year, which is occupied by the business, is called the non-current asset. A non-current asset is also divided in 2 terms. One is tangible asset. For long-term purpose, बिजनेस के लिए जो प्रॉपर्टी जो टेंजिबल है, विजिबल है, टचेबल है, दैट इज कॉल्ड द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. टेंजिबल एसेट्स, नॉन करेंट एसेट को फिक्स्ड एसेट्स भी कहा जाता है. So plant and machinery, land and building, furniture, these are the example of the non-current assets, tangible. And intangible, just opposite of tangible, that is invisible or untouchable fixed assets. That is called the intangible asset, non-current asset for the long term. Once if the business has raised the goodwill or reputation in the market, that will sustain for few years. That's why it is more than 1 year. So it is the non-current asset and it is not seen. We cannot see the goodwill of anybody. We cannot see the goodwill of Reliance, goodwill of Tata, goodwill of any business, goodwill of City Center, goodwill of Big Bazaar. We can feel the reputation of the organization. That reputation is called the goodwill. So goodwill is the term which is intangible asset. Trademark, copyright, patent, these are the example of the कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर बोलेगा, कंप्यूटर हो जाते हैं हार्डवेयर. कंप्यूटर इज द टेंजिबल एसेट, बट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज इनविजिबल. सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विल बी द intangible fixed asset. Okay, proceed towards the current asset. That means the asset whichever is converted into cash within 1 year is called the current asset. जैसे कि एग्जाम्पल कैश इन हैंड. किसका कैश? अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग. किसका कैश? मेरा पॉकेट में जो कैश है वो नहीं. बिजनेस के नाम पे जो कैश अकाउंट में एंट्री हुआ है, जो कैश, वो कैश का बात कर रहे हैं. तो बिजनेस के नाम पे जो कैश अकाउंट, कैश मनी है, बिजनेस के नाम पे बैंक में जो अकाउंट है, वो अकाउंट में जो अवेलेबल मनी है, वो मतलब टर्म क्या यूज होगा? कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. अगर किसी से चेक मिला है बिजनेस को, वो चेक अभी तक बैंक में जाके उसको रिकॉर्ड नहीं हुआ, पुट नहीं किए बैंक में,
तो चेक इन हैंड, उस चेक में अगर 20,000 रुपया लिखा हुआ है तो वो 20,000 रुपया भी हमारा करेंट एसेट है। चेक इन हैंड टर्म यूज होता है उसमें। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड, इन्वेंटरी या स्टॉक जो सामान है, ये सब का सब देखो 1 साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट होने वाला है। स्टॉक पे जो सामान है बिजनेस का, बिजनेसमैन का टारगेट रहता है कि विद इन 1 ईयर वी विल सेल दिस एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मनी। इट इज द टारगेट। अगर किसी एम्प्लॉइज को हम 2 महीने के लिए सैलरी एडवांस में दे दिए, दैट इज कॉल्ड द प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस। सो प्रीपेड इज ऑल्सो द करेंट एसेट बिकॉज after within 2 months the services will be coming from that employee. Amount I will not have to pay for that service. So that prepaid expense is also the current asset. After that fictitious assets is coming. In current asset 2 more items you will get. Debtors, bills receivable. If business has sold goods on credit, money is not received from the customer, money will be received, so that money amount will be treated as the current asset, but the term will be used for that debtors because that is current asset, will be converted into cash within 1 year. 2-3 महीना 4 महीने के लिए उधारी दिया जाता है किसी को, तो वो ऑटोमेटिकली 4 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल, अगर हमारा बिजनेस क्रेडिट में सेल किया किसी को सामान, उसके नाम पे कोई बिल बना के रखे, तो ये बिल 91 डेज से ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है नॉर्मली। तो 91 डेज मतलब 3 months, तो विदिन 3 months दैट मनी विल बी कमिंग फ्रॉम दैट पर्सन, बट द टर्म विल बी यूज्ड bills receivable as the current asset. Now coming to fictitious asset, this is very mysterious name of the asset. It is such a type of expense, such a type of loss of the business, but this loss of this expense will bring the profit in future in the business. Company फंड अरेंज करने के लिए शेयर इशू करते हैं। शेयर इशू कर रहे हैं, एक शेयर का रेट है 100 रुपया, लेकिन अगर 5 रुपया लेस में शेयर को इशू करते हैं, दैट इज 95 रुपीज में शेयर इशू करते हैं, तो दिस 5 रुपीज इज कॉल्ड द डिस्काउंट। डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर, जितना शेयर इशू कर रहे हैं 5 रुपया पर शेयर, द कंपनी लॉस में शेयर को इशू करके फंड अरेंज कर रहे हैं। क्यों? अगर डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं करते तो जितना शेयर इशू करना चाह रहे उतना शेयर इशू भी नहीं होता, उतना कैपिटल भी नहीं आता, तो बिजनेस का उतना प्रॉफिट भी नहीं हो पाता। इसीलिए डिस्काउंट का जो लॉस हो रहा है वो तो लॉस हो रहा है, बट ये लॉस स्वीकार कर रहे कंपनी तो ताकि ज़्यादा कैपिटल आ जाए और ज़्यादा कैपिटल ज़्यादा प्रॉफिट लाने का चांस रखता है। तो आज का जो डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर लॉस है, ये लॉस कैन ब्रिंग द प्रॉफिट इन फ्यूचर। सो व्हाई नॉट दिस लॉस इज कॉल्ड द एसेट, बट दिस लॉस एसेट, fictitious asset of them, this fictitious asset will not be converted into cash. ये जो 5 रुपए का लॉस हुआ डिस्काउंट, ये कभी वापस नहीं होगा। प्रॉफिट के रूप से आएगा, वो डिफरेंट फैक्टर है, पर ये 5 रुपये जो डिस्काउंट का लॉस हुआ, ये कभी रियल कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। इसीलिए इसको fictitious assets नाम दिया गया है। So these are tough, but if you properly we go through in the books and daily we have the touch. I have 10 friends, but if I don't know the name of those 10 friends, I cannot call any friend out of those. So I have to identify the name of the each and every friend of mine. So these are the friends of yours, friends of the accounting process. So we have to know the different name of the different friends of us. Thank you very much. In the next episode, for the next.